Today I am back to share with you for your term 1 CBSE strategy for the last 10 days. So before that, I would want you all to please like, subscribe and comment on my channel. So after you've done that, let's get back. Let's come to the main thing of this session, of this video, and that is about how you are going to plan and what exactly you're going to do for the next 10 days, after which the very term 1 of CBSE is starting for class 10th. So students, for that, for planning anything, we should at least look at our date sheet that has been just released by CBSE a few days back. So, I have already written this date sheet here. Let us have a look. The first paper that you are having, the first exam that you are having is on 30th November, and that is of social science. After 30th, you have your next exam on 2nd of December, and that is the science paper. After science, which is on 2nd, you are having your mathematics examination on 4th of December. And after that, you get a couple of gaps, a good amount of days, where you are having your exam on 9th of December, that is Hindi, and on 11th, you are having English. So this is the date sheet. So how do we plan? We just have merely 9 days left. So if you see firstly, each and every subject is important. हर एक subject equal weightage होना चाहिए, because कहीं भी मे बी कुछ बच्चों के लिए कोई सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड दे फाइंड कि दूसरा सब्जेक्ट वो कंपैरेटिवली कम टाइम में कवर कर लेते हैं. सो बट हम साइकोलॉजिकली बात करें अगर, देन चिल्ड्रन से दैट एसएसटी, साइंस एंड मैथ्स आर मोर, वी कैन से डिफ़िकल्ट या फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. सो इसी वजह से अगर हम देखें डेट शीट भी जो रिलीज़ की गई है सीबीएसई की, उसमें जो 3 एग्जामिनेशन स्टार्टिंग के हैं, दैट इज़ एसएसटी, साइंस एंड मैथ्स, एंड लैंग्वेज इज़ एट द एंड. सो ये 3 एग्जाम्स जिनसे बच्चों को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम देना है, दे आर डिफ़िकल्ट पेपर्स एंड इसमें हमें गैप्स भी कम मिले हैं. सो हाउ आर वी गोइंग टू प्लान दिस आउट? सो let us start. Let me tell you a good strategy and you can stick to that, and I can assure you that with this आपने जो भी goal set किए हैं 95%, 90%, 100%, 98%, I'm sure in last 9 days के working pattern से you can surely achieve that. So 22nd से आपके पास 29th तक का टाइम है. So 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27, 28 and 29. You have 8 days. यहाँ हमारे पास 8 days है, एंड इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 22nd, 23rd, 24th and 25th. So 22nd November to 25th of November. That is your 4 days, 22nd, 23rd, 24th, 25th. 4 दिन जो हैं आप डिवोट करिए टू SST, मैथ्स एंड साइंस. सो कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे इस टाइम पे? SST, देन यू हैव मैथ्स एंड यू हैव साइंस. सो अपने हिसाब से आप टाइम डिवोट कर सकते हैं कि 22nd को आप 22nd एंड 23rd यू कैन स्टडी, 22nd, 23rd यू कैन स्टडी SST, 24th को यू कैन स्टडी मैथ्स एंड 25th को यू कैन डू साइंस. नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट है 26, 27, 28 एंड 29, अनदर 4 days. सो 26th November to लेट्स से 28th November. इस ब्रैकेट में आप फिर से 26 को SST, 27 को मैथ्स, 28 को आप साइंस पढ़ सकते हैं. सो अगेन SST, 1 day SST, 1 day मैथ एंड 1 day साइंस. बट क्योंकि 30th को आपका SST का पेपर है, सो 29th को मेक श्योर कि आप सिर्फ SST पढ़ें. चाहे आपको लगे कि हाँ मेरी तो पूरी तैयारी हो गई है, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव read my NCERT textbook so many times, I've solved all the sample papers, but still एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो. सो ऑन 29th we should just be focusing on SST.
एंड ये जो प्रेपरेशन है जो आप यहाँ पे 22 से 25 नवंबर कर रहे हैं, एंड फ्रॉम 26 टू 28 ऑफ नवंबर यू शुड बी डूइंग सर्टेन थिंग्स. क्या करना है आपको? सबसे पहले दिन में कम से कम आपको 12 घंटे तो डिवोट करना ही करना है. ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि 12 आवर्स, क्या पता कुछ बच्चे पहले से भी ऐसे कर रहे हैं या उससे ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, बट you should also make sure each and every child, see it is just a matter of few days, just few weeks, and then ये term 1 भी ख़त्म हो जाएंगे. So अब तो बिल्कुल ज़रूरी है that you start working, you start giving most of your time, and I would suggest कि ideally एक 12 hour in a day should be devoted to studies. So what you have to do is first 12 hours a day should be devoted to studying. सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है फ्रॉम 22 टू 29 जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो कि मोस्टली SST, मैथ्स एंड साइंस को आपने डिवोट किया है, सो 12 आवर्स अ डे यू हैव टू स्टडी. आफ्टर दिस आपको सेकेंड चीज़ जो करनी है दैट इज़ कि आपको इस 12 आवर्स में यू हैव टू डेफिनेटली रीड योर NCERT बुक. चाहे आपने कोई चैप्टर्स पूरे पढ़ लिए हैं या एक दो चैप्टर्स आपके बचे हैं, साइंस हो, मैथ्स हो, SST, द फर्स्ट बुक दैट यू शुड रेफर टू इज़ योर NCERT विच इज़ अ मस्ट. फॉलोड बाय NCERT देयर शुड बी सैम्पल पेपर रिविजन. तो आप CBSE के सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं, नेट पे इतने सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, और यू कैन बाय एनी बुक. सो यू कैन गेट लॉट मैनी सैम्पल पेपर्स एंड यू शुड मेक श्योर दैट ये जो टाइम है यू डेफिनेटली सॉल्व सैम्पल पेपर्स. एंड बाय सैम्पल पेपर आई डू मीन कि ये जो प्रैक्टिस है दैट शुड बी देयर ऑन एन OMR शीट, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको OMR शीट को जो CBSE ने डायरेक्शंस दिए हैं अकॉर्डिंगली यू नीड टू लर्न टू यूज़ दैट. Because at the end, if I've read something, I know the entire syllabus, I know my question paper, but if I am not aware of how I am going to mark my answer on an OMR, then मेरा जो entire purpose है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा. Because the CBSE is going to examine me, evaluate me on the basis of my answer sheet, and मेरी answer sheet है my OMR sheet. So एक प्रैक्टिस में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है that when I am solving my sample papers, I am taking a test, I should be taking that test on an OMR just like I will be giving my exam in the main examination hall. जब मैं CBSE के एग्ज़ाम जैसे आप दोगे उसी तरीके से आपको OMR शीट पे प्रैक्टिस करनी है. So this is important for your preparation, for your practice, for your revision, and obviously the very main thing जो आपको prepare कर रहे हैं हम examination जो है term 1 के लिए. So these things must be followed. अब इससे पहले अगर हम डेट शीट पे वापस आते हैं, यहाँ तक तो आपने तैयारी कर ली फॉर मैथ्स, साइंस एंड SST which gets over on 4th of December. Now after 4th December हमारे दो लैंग्वेज पेपर्स जो फाइनल पेपर्स है बच रहे हैं. 9th we are having हिंदी एंड on 11th we are having our English paper. So चीज़ें तो यही करनी है हमें. We have to stick to NCERT, solve sample papers, read the book and study for 12 hours a day and take a test on OMR जितना ज़्यादा हम ये कर सकें. बट अब हम प्लान कैसे करेंगे? 4th के बाद वी हैव टाइम 5th, 6th, 7th एंड 8th. 4 दिन हैं हमारे पास 4th December till 8th December. So 4th, 5th, 6th एंड 7th क्योंकि 9th को हिंदी है, सो 7th को 8th को तो हम डेफिनेटली हिंदी ही पढ़ेंगे. सो 8th वी आर स्टडीइंग हिंदी एंड उसके बाद तो डेफिनेटली हमारे पास 9th को पेपर देंगे. पेपर दे के आके देन अगेन 11th को जो इंग्लिश का पेपर है उसकी तैयारी होगी. बट यहाँ पे फ्रॉम 4th टिल 4th, 5th, 6th and 7th 4 दिन देखा जाए तो 4.5 days हैं हमारे पास. And in these 4.5 days we have to devote 50% of the time to Hindi and 50% of our time to English. So 50% time to Hindi and 50% time to English.
ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर इंग्लिश एंड हिंदी पेपर्स विच आर द लास्ट पेपर्स दैट वी हैव टू गिव। तो इस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी होती है फॉर हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द लास्ट 9 days, द रिमेनिंग 9 days दैट वी आर हैविंग। एंड जो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई दैट हमारे पास 4.5 days है यहाँ पे। सिमिलरली 30th को जब हम SST का पेपर आप दे देते हो, आफ्टर 30th सेकेंड है, तो सिर्फ एक दिन नहीं है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव 1.5 days। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास SST का पेपर जो आप 30th को दे रहे हो, आफ्टर दैट यू नॉट जस्ट हैविंग 1 day but 1.5 day, and same goes for maths, because after second when you come home after giving your paper you again have 1.5 day for your maths paper। so यहाँ पे हमारे पास 1.5 days हैं and यहाँ पे भी हमारे पास 1.5 days are there to prepare। सो दिस इज़ हाउ आई विश कि आप प्रिपेयर करें, प्लान करें, इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। जितना टाइम हमारे पास बचा है यू कैन मैक्सिमाइज इट, एंड जितना ऑप्टिमम यूज़ है यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट। एंड विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर term 1 CBSE examinations। गुड लक चिल्ड्रन।